This is Rupa from Angel Paradise English Medium School. Today I will explain chapter number 3, Playing with Numbers from Mathematics. So I will divide the chapter into 3 parts. In first part we will see introduction, example 1 to 3, exercise 3.1, and next topic introduction of prime and composite numbers, exercise 3.2, and some key factors of the numbers. So now I will start the chapter. Student, today we will see chapter number 3, Playing with Numbers. In these chapters I will explain some different types of numbers and rules and regulations of factors and multiples, LCM and HCF. So these are the types of numbers we will see in these chapters. First, here we will see first some examples and introductions of numbers. Ramesh has 6 marbles with him. So Ramesh had 6 marbles. He wants to arrange them in rows in such a way that each row has the same number of marbles. So with the marbles, Ramesh can arrange a rows, and in each rows same numbers of marbles are there. He arranges them in the following ways and matches the total number of marbles. So in this way we can easily find out the factors of the number 6. How we can find and calculate the number of factors? First, one marble in each row. So each row has a one marble. Number of rows 6. Yes, 6 number of rows are there. 6 number of rows are there. So then at last, total number of marbles is equal to 1 multiply 6 is equal to 6. So students, we can see that number of rows is equal to 6. Number of rows 6 and column are only 1. So it means 1 multiply 6 is equal to 6. 1 6 are 6. Second factors we can find the 6. 2 marbles in each rows. So first Ramesh ने 6 मार्बल लाइन से किया है, तो उसके बाद उसने डिसाइड किया कि एक एक में वो 3 मार्बल रखेंगे. नंबर ऑफ रोज 3, 2 कॉलम्स एंड 3 रोज. 1 and 2 कॉलम्स से 2 कॉलम्स में 3 मार्बल्स वो कलेक्शंस करके रखेंगे. Number of rows 3, 1 2 3. Total number of marble is equal to 2 columns and 3 rows. It means is equal to 6. 2 3s are 6. Next, Ramesh can arrange the 6 marbles in 2 rows. 1 2. 2 रोज में उन्होंने अरेंज किया है 6 मार्बल्स को. सो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 6. टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू 3 multiplied 2 is equal to 6. So in this way, different types of methods we can find a factors of 6 in easy way. So now we can, last one is number of rows 1 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्बल 6. सिर्फ एक ही 1D रो से और मार्बल 6 से. इस तरह रमेश ने 4 डिफरेंस मेथड के हिसाब से 6 मार्बल्स को अरेंजमेंट किया है. सो इन दिस वे वी कैन ईजीली फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर 6. नॉट ओनली 6, एनी टाइप्स ऑफ numbers we can find this way in factors. So now we'll write the factor of 6 is equal to 1 6 are 6. Next 2 3s are 6.
3 2s are 6, and last one is 6 1s are 6. Thus 1, 2, 3 and 6 are exact divisors of 6. So 6 number 1 table, 2 table, 3 table and 6 table में exact divided होगा. So they are called the factors of 6. So it's all the 4 numbers are called the factor of 6. So in this way, students at home, you can make more practice the number 18 marbles in a row and find the factors of 18. So the same method you can follow and draw a marbles types in your notebook and find out the factors of 18. Next one is factors and multiples. A factor of a number is an exact divisor of that number. जो भी हम नंबर फैक्टर्स का नंबर ले रहे हैं वो नंबर उसी के टेबल में itself own the number is divisor of that number. फॉर एग्जाम्पल अभी हम 4 ले रहे हैं. 4 टेबल जो है कंपल्सरी 1 में होगा और वो खुद का टेबल 4 मीन्स 4 के टेबल में कंपल्सरी होता है. फैक्टर्स ऑफ 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4 और उसके जो फैक्टर्स जो होते हैं उसके इक्वल भी आएंगे और उससे लेस देन, इट मीन्स कम में भी उसका फैक्टर्स पॉसिबल है. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू गेट अ लिटिल बिट नॉलेज ऑफ द फैक्टर्स मेथड. सो here we can, for example, we take a 4. So you can easily say that the factor of 4 is 1. Compulsory all the numbers are factors of 1. और एक नंबर का फैक्टर 1 कंपल्सरी होता है. सो 1 आप आइज क्लोज करके भी आप लिख सकते हैं. कोई भी नंबर्स का फैक्टर्स लेना है तो आपको स्टार्टिंग 1 से ही करना है. सो नेक्स्ट उसके बाद वो नेक्स्ट जो है वो खुद के नंबर पे भी डिवाइडेड होगा. ये 2 कंपल्सरी है, एक 1 का है और दूसरा है खुद का. इट्स ओन इटसेल्फ दे कैन गेट द फैक्टर्स ऑफ द नंबर. उसके बाद आपको अलग अलग टेबल्स में ट्राई करके देखना है कि ये टेबल्स में नंबर पॉसिबल ये है नहीं. सो इट्स ऑल्सो ईजी मेथड. मैं आपको ईजिली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करना है कि कोई एक नंबर 2 के टेबल में पॉसिबल है, 3 के टेबल में पॉसिबल है. सो आपको अचानक से सडनली आपको याद नहीं हो रहा है कि आपको 15 नंबर जो है फैक्टर जो है वो आपको 2 में पॉसिबल है, 3 में पॉसिबल है क्या नहीं. उसका अलग रूल्स भी है और उसका की फैक्टर्स भी है. So next we will see some rules and key factors of that factors and multiples. So first now we will see some rules of factors and multiples. So first, 1 is a factor of every number. So मैं जो डार्क में लिखा है ब्लैक में मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. 1 is a factor of every number. So पहले मैंने इन्फॉर्म किया कि 1 is a factor of every number. Every number का 1 factor कंपल्सरी है. फॉर एग्जाम्पल 6 is equal to 1 6 6. सो आपको याद नहीं आ रहा है कि 6 कौन से टेबल में है. सो आप पहले 1 को उस नंबर के साथ मल्टीपल करना है. कंपल्सरी ये जो भी क्वेश्चन में नंबर है वो 1 के टेबल में और ये खुद के टेबल में पॉसिबल है. नेक्स्ट, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. नेक्स्ट, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दे रहे हैं सो वो नंबर वो टेबल में कंपल्सरी आता है. तो 7 इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ ओन. तो 7 1 7 का उसके टेबल में आ रहा है. नेक्स्ट, every factor of a number is an exact divisor of that number. Every factors means अभी फॉर एग्जाम्पल फैक्टर ऑफ 16. तो इसको हम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है. सो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है 16 का फैक्टर 1 है और उसका खुद का इटसेल्फ 16 जो है दोनों है. बट उसके बीच में कौन कौन से नंबर पॉसिबल है ये भी आपको लिखना है.
देखना है कि आपको 2 के टेबल में पॉसिबल है, 3 के टेबल में पॉसिबल है। तो इस तरह देख के उसका फैक्टर्स आपको लिखना है। 4 number, every factor is less than or equal to the given number. So suppose we can for example 34. So every factor, so 34 और उससे लेस देन उस नंबर का इक्वल टू दैट गिवन नंबर। सो 34 का फैक्टर यहाँ पे पॉसिबल है 1, 2, 17 एंड 34 itself. The other factors of 1, 2 and 17 are less than 34. So 34 जो फैक्टर है उससे कम आ रहा है उसका अदर फैक्टर्स 1, 2 and 17. Next, number of factors of a given number are finite. So यहाँ पे जो भी हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं so उसका एक लिमिटेड फैक्टर्स होता है. So अनइन्फिनिट फैक्टर्स नहीं होता है. इन्फिनिट मीन्स हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते, इस तरह फैक्टर्स अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है. सो अभी हम 76 का फैक्टर्स लिखना है. सो उसका एक लिमिटेड फैक्टर्स है. 76 मीन्स उसका इतना फैक्टर्स ही पॉसिबल है. सो अनलिमिटेड यहाँ पे फैक्टर्स में पॉसिबल नहीं है. Every multiple of a number is greater than or equal to that number. So for example here 7. 7 ones are 7, 7 twos are 40, 7 3 are 21, 7 fours are 28. So here we can take a little bit 7 tables up to 7 fours are 28. You will find that each of these multiple is greater than or equal to 7. So in this form we can see here that so in these factors it's a greater than or equal to 7. ये 7 और 7 से ज़्यादा है. So इसलिए every multiples of a number is greater than or equal to that numbers. So इसलिए हर एक multiples का जो भी हम tables काउंटिंग कर रहे सिर्फ 7 नहीं 8, 9 सो वो भी नंबर होता है और उससे ज़्यादा ही नंबर्स फॉर्म हो रहा है. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इन्फिनिट. सो अभी हम 5 का टेबल्स लिखना शुरू करेंगे तो उसका कोई भी एंडिंग नहीं होगा. 5 काउंट करके हम उसका मल्टीपल्स लिख के ही जा सकते हैं. बट फैक्टर्स में लिमिटेड होता है बट मल्टीपल में अनलिमिटेड होता है. सो स्टूडेंट्स आप याद रखना है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स दोनों का डिफरेंस है. मल्टीपल्स में कोई भी नंबर्स लिमिटेड नहीं होगा बट फैक्टर्स में लिमिटेड नंबर होता है. एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. सो एवरी नंबर यू कैन गेट इट्स अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ ओन एंड 1. 1 is every factor of that number and every number is a multiple of own number. So these are some 8 truths we can see here. So students, in your notebook in front page आप जब ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो उस चैप्टर स्टार्ट करते टाइम हेडिंग डाल के रूल्स ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स लिख के आप ये जो ब्लैक में लिखा है वो आपको पॉइंट वाइज कंपल्सरी लिखना है. नेक्स्ट, we will see some examples of factors. Example number 1, write all the factors of 68. So here we can write all the factors of 68. First you can write 1. 68 is equal to 68. So 68 जो है 1 टेबल में कंपल्सरी आता है तो इस तरह आपको लिखना है. नेक्स्ट, आपको बार बार 68 लिखने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ मैं आपको एक सम्स नोटबुक में करके दिखा रही हूँ जिस तरह आपको करना है. We will see example number 1, factors of 68. So answer start with here. 68 is equal to 1 multiply 68. Next, 2 34s are 68, 4 17s are 68, 17 fours are 68. Next, last one is 16 ones are 68. So students, at last in ones place
ये जो 8 जो है वो आपका वंस प्लेस है। वंस प्लेस में अगर इवन नंबर है सो वो नंबर 2, 4, 6 टेबल में पॉसिबल है। सो ये याद रखना है, ये की फैक्टर्स है। सो कोई भी नंबर आप ले लो, 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का है या 4 डिजिट का, कोई भी डिजिट का हो, वंस प्लेस में जो फर्स्ट प्लेस में नंबर इवन नंबर है वो नंबर 2, 4, 6 टेबल में पॉसिबल है। So therefore the factors of 68 are 1, 2, 4, 17 and 34 and 68। इससे आपको आंसर्स लिखना है, इसी मेथड से फॉलो करना है। नेक्स्ट वी विल सी एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 36। ये भी आपको जिस तरह मैंने एग्जाम्पल 1 एक्सप्लेनेशन किया है वैसे आपको एग्जाम्पल 2 भी लिखना है। सो लास्ट में यहाँ पे 1 प्लेस में 6 नंबर है और ये जो 6 है आपका इवन नंबर है, बट ये जो 6 है वो 3 के टेबल में भी पॉसिबल है। सो 3 का ये की फैक्टर है कि जितने भी नंबर्स है उसको ऐड करके 3 में डिवाइड करना है। तो वैसे भी आप एक बार करके देखना है। अभी यहाँ पे 36 जो है, पहले 3 प्लस 6 दोनों को ऐड करके आप 3 से डिवाइड करेंगे तो उसमें आपको डिवाइडेड हो रहा है तो वो नंबर 3 के टेबल में पॉसिबल है। सो दिस आर द की फैक्टर्स ऑफ द नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 में आपको नोटबुक में एक्सप्लेन कर रही हूँ किस तरह आपको आपके नोटबुक में फेयर नोटबुक में लिखना है मेथड के साथ। सो रिया एग्जाम्पल नंबर 3। क्वेश्चन, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 का फर्स्ट 5 मल्टीपल्स यू आर टू राइट इन द नोटबुक। So 6 ones are 6, 6 twos are 12, 6 threes are 80, 6 fours are 24, 6 fives are 30। क्वेश्चन में जो नंबर पूछा है उसको आपको जितने तक मल्टीपल्स करना है उतने तक आपको टेबल लिखना है और कुछ नहीं। अगर क्वेश्चन में 6 मल्टीपल पूछा है तो 6 6 are 36 वहाँ तक लिखना है। Therefore 6, 12, 18, 24 and 30 are the first 5 multiples of 6. So these are all the numbers are first 5 multiples of 6. In this way, the same method you can follow in exercise also. Next we will see exercise 3.1. So total 4 questions are there in 3.1. First question is, write all the factors of the following numbers. So जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल 1 and 2 एक्सप्लेनेशंस किया है उसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी पूरा लिखना है। 24 का फैक्टर्स, 15, 21, से सब कुछ बहुत स्मॉल नंबर है। आई होप कि आपको नॉलेज तो होगा ये नंबर सब कौन कौन से टेबल में पॉसिबल हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, 8, 9। सो फर्स्ट 5 एग्जाम्पल 3 की तरह वहाँ पे भी आपको फर्स्ट 5 पूछा है 6 टेबल का और यहाँ पे फर्स्ट 5 पूछा है 5 टेबल, 8 टेबल एंड 9 टेबल। The same method you can follow the question number 2 also in same to same example number 3. Next one is matching. So matching में आपको क्वेश्चन लेके उसके सामने डायरेक्ट आंसर लिखना है। 35 मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 70 या फैक्टर ऑफ 30। So easily you can find that it's a multiple of 7. 7 के टेबल में 35 पॉसिबल है। नेक्स्ट 15
multiple of 8, multiple of 7, multiple of 70, then factor of 30. और नीचे भी है factor of 50, factor of 20. नेक्स्ट 16 किस में पॉसिबल है? तो यहाँ पे देखें तो 8 टेबल में 16 पॉसिबल है. नेक्स्ट 20. सो 20 का यहाँ पे मल्टीपल तो हो ही नहीं सकता है. सो नाउ वी विल टेक अ फैक्टर. सो फैक्टर्स इज 20, फैक्टर ऑफ 20. फिर फोर्थ का आंसर आएगा आपको F. नेक्स्ट वन इज 25. सो 25 में फैक्टर 70 तो इट्स नॉट अ पॉसिबल. Then the answer is factor of 50. Next, question number 4. Find all the multiples of 9 up to 100. 9 के टेबल लिखना है आपको up to 100 तक. 100 के नीचे जितने नंबर्स 9 के टेबल में आ रहा है वहाँ तक आपको लिख के जाना है. 9 1 9 से लेके 100 के नीचे जहाँ तक 9 के टेबल में नंबर पॉसिबल है वहाँ तक आपको लिखना है. So students, first you can write the rules of the factors and multiples. मैं आपको टेक्स्ट बुक में जो डार्क में जो लिखा है बस वही आपको लिखना है रूल्स आपके फ्रंट पेज में. उसके बाद एग्जाम्पल्स लिखना है. एग्जाम्पल 1, 2, 3. देन यू कैन राइट एक्सरसाइज 3.1. 3 एग्जाम्पल कंपल्सरी लिखने के बाद ही आपको 3.1 शुरू करना है. This topic is prime and composite number. So what is the prime numbers and composite number? Prime and composite number होता क्या है? So yes, some tables and numbers factors are there. Numbers 1 to 12 factors. 1 का factors क्या है? 2 का factors क्या है? 1 का factor 1. So I have already explained that 1 is a factor of all the numbers. And 2 number 1 and 1 में कॉमन है and 2 के टेबल में itself own number कॉमन. 3 same 1, 3. 4 number it's possible in 1 table, 2 table and 4 table. 5 is 1, 5. In this way first we can write the factors of 1 to 12. After that we can count the factors. Number of factors 1, number of factors 2. 2 के number of factors है 2. 3 के number of factors है 2. 4 के number of factors 3 because 1, 2 and 3. In this way we can count the number of factors. So Greek mathematician Eratosthenes will find the prime and composite number. So first we will see prime number. So जिस नंबर के फैक्टर्स 1 and itself own खुद के नंबर के फैक्टर्स होते हैं वही इट्स नोन एज प्राइम नंबर्स. फॉर एग्जांपल 2. सो 2 का फैक्टर है 1 और वो itself own. सो 2 नंबर पॉसिबल है 1 and 2 उसके खुद के टेबल में. सो 3 भी सेम. 3 का भी कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर्स नहीं है, सिर्फ फैक्टर्स होगा 1 and itself own. बट 4 का फैक्टर्स है. 4 टेबल सिर्फ 1 and 4 के अलावा 2 में भी पॉसिबल है. सो जो नंबर्स के फैक्टर्स 1 and itself own खुद के नंबर है इट्स नोन एज प्राइम नंबर्स. नेक्स्ट कॉम्पोजिट नंबर जो उस 1 and itself own टेबल के अलावा दूसरे टेबल में पॉसिबल है. सो दिस नंबर्स आर कॉल्ड अ composite number. So students, please listen carefully. Prime and composite number is a very important method. So again I will repeat the difference between prime and composite.
प्राइम नंबर जो है फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ ओन, खुद के नंबर्स के फैक्टर्स हो, सिर्फ दो ही फैक्टर्स होगा, वो नंबर प्राइम नंबर है। सो जो दूसरे टेबल में वो नंबर आ रहा है वो नंबर कॉम्पोजिट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी क्रॉस किया हुआ है वो सब कुछ कॉम्पोजिट है, और जो सर्कल किया है वो प्राइम नंबर्स है। सो वी कैन सी द circle and crossed numbers. We can easily find out the difference between prime and composite. 2, 3, 5, 7 ये सबके फैक्टर्स एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ इसका दो ही फैक्टर्स है, एक 1 एंड इटसेल्फ ओन। बट 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 ये सब कुछ नंबर दूसरे टेबल में भी पॉसिबल है। सो इसका 4 का 2 में पॉसिबल है, 6 2 3 में पॉसिबल है, 8 2 टेबल 4 टेबल में पॉसिबल है। जिस तरह इसका फैक्टर्स नंबर का फैक्टर्स ज़्यादा हो रहा है वो कॉम्पोजिट नंबर है, सिर्फ दो ही में फैक्टर्स फिनिश्ड हो गए, ये आपका प्राइम नंबर है। बट 1 is not a prime number or a composite number. 1 is neither a prime nor a composite number. It's a factor of every odd number. Next, 2. So 2 is the smallest prime number. Listen carefully, students. 2 is the smallest prime number, and only 2 is a prime number which is even. Even numbers, you have to know that even numbers means 2, 4, 6, 8, 10. These are the even numbers, but 2 is the only one even numbers which is a prime number and which is not any other factor. So this method is called the sieve of Eratosthenes. So example number 4, write all the prime numbers less than 15. 15 के नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स है वो आपको लिखना है। सो प्राइम नंबर्स मीन्स जो नंबर 1 और इट्स ओन सेल्फ उसके नंबर्स के अलावा कोई भी टेबल में पॉसिबल नहीं है। 2, 3, 5, 7, 9 and 13. So यही these are the prime numbers are less than 50. So students, I hope you are to get the knowledge of the difference between prime and composite number. So you have to students know that even numbers start with 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. And the odd numbers are start with 1, 3, 5, 7, 9, 11. So I have already told that if you get any number at one's place is even, the whole number is divided by 2. आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो वो नंबर में फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे नंबर है 7,56,482. सो आपको ये चेक करना है कि ये नंबर 2 के टेबल में पॉसिबल ये या नहीं। सो यू कैन सी द लास्ट प्लेस, यूनिट्स वंस प्लेस ऑफ द नंबर। ये वंस प्लेस इज 2, सिर्फ इन वन प्लेस द नंबर इज इवन, इट इज डिवाइडेड बाय 2। अगर वन प्लेस में नंबर इवन है तो वो नंबर्स 2 के टेबल में डिवाइडर होगा। So these are the key factors of the number. 2 is the smallest prime number which is even. Every prime number except 2 is odd. सिर्फ 2 को छोड़ के बाकी सब प्राइम नंबर odd है। नेक्स्ट वी विल सी एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में जो सम्स में बोल रही हूँ वही सम्स आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, डायरेक्ट यू कैन राइट क्वेश्चन नंबर 4।
Write down separately the prime and composite numbers less than 20. So मैंने आपको जिस तरह एग्जाम्पल 4 करवाया है उसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है. एग्जाम्पल 4 में we will see only prime number, but in question number 4 you can write a prime and composite number. 20 के नीचे जितने भी prime and composite number है वो आपको लिखना है. First you can write arrow mark and write down prime number, then after that you can write a composite numbers. Prime numbers and composite दोनों आपको कंपल्सरी लिखना है. Next, question number 5. What is the greatest prime number between 1 and 10? So first you can just imagine that and write down 1 to 10 prime numbers. आप पहले 1 से लेके 10 तक जितने भी प्राइम नंबर्स है उतने आपको लिखना है. उसके बाद उससे सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है वो आपका आंसर है. So you can write question number 4 and 5. So in exercise 3.2 you can write question number 4, 5 and last fill in the blanks. A number which has only 2 factors is called a dash. सिर्फ कोई भी आप नंबर ले रहे हैं सिर्फ उसका 2 ही फैक्टर्स है वो कौन सा नंबर है. इट्स कॉल्ड अ प्राइम फैक्टर. प्राइम नंबर में ही आपको सिर्फ 2 फैक्टर पॉसिबल है. सो आंसर इज प्राइम नंबर. A number which has more than 2 factors is called a dash. So more than 2 factors is known as a composite number. One is neither prime nor composite. The smallest prime number is, students, you can write the answer, it's your own, because I have already told the smallest prime number. And the smallest composite number. Then question number D is smallest composite number. Composite means आपको देखना है कि जो numbers more than 2 factors it's called a composite number. सबसे composite number क्या है वो आपको अपने आप खुद लिखना है. The smallest even number. I have already told these questions also in I will explain in prime and composite number. जब मैं आपको प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर एक्सप्लेन कर रही थी तो क्वेश्चन नंबर डी ई एफ तीनों का आंसर्स मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ. सो यू कैन राइट एट होम. So students, I hope you are to get the knowledge of the prime and composite number. Next, we will see some key factors of numbers. की फैक्टर्स के नंबर्स अभी हम देखने जा रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट अ एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने के पहले आपको ये टेबल लिखना है. आपको इसी तरह क्रॉस और सर्कल करके नहीं लिखना है. पहले प्राइम नंबर्स और उसमें जो जितने प्राइम नंबर है वो लिखना है. नेक्स्ट कॉम्पोजिट नंबर. कॉम्पोजिट नंबर में जितने नंबर है वो लिखना है. इस तरह क्रॉस और सर्कल करके नहीं लिखना है. ये लिखने के बाद आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2. इन दिस वे यू कैन नो दैट योर ओन कि आपको जितने प्राइम एंड कंपोजिट नंबर समझ में आए जो मैंने एक्सप्लेनेशंस किया है. सो आपको पता चल जाए कि आपको कितना फार आए या नहीं फार आए. अगर पहले आपको बिना देख के लिखना है, अगर आपको उसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज्ड हो रहे हैं तो आप ये टेबल को देख सकते हैं. बट यू कैन राइट एंड प्रैक्टिस योर ओन. So after you finish exercise 3.2, you can note down key factors of the numbers. You can start with divisibility of 10. इसके पहले आपको हेडिंग लिखना है key factors of numbers. So if a number has
0 in the ones place, then it is divisible by 10. अगर ones place में कोई भी नंबर ले लो तो उसमें ones place में 0 है, so its number is divisible by 10. so यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. इन सब एग्जाम्पल्स में ones place में 0 नंबर है. So these all the numbers are possible in table 10. टेबल 10 में सब नंबर्स पॉसिबल हैं. So these are the key factors of टेबल. अगर आपको टेबल 10 में नंबर्स आ रहा है कि नहीं आ रहे वो देखने के लिए ये आपका की फैक्टर है. नेक्स्ट सेम की फैक्टर ऑफ 5. अगर 5 के टेबल में कोई भी नंबर आपको देखना है कि पॉसिबल है या नहीं, सो आपको इट्स अ की फैक्टर. अ नंबर विच हैज either 0 or 5 in its ones place is divisible by 5. कोई भी नंबर ले लो, ones place में 0 and 5 दोनों में से कोई भी एक नंबर है, सो वो नंबर 5 के टेबल में पॉसिबल है. फॉर एग्जाम्पल 105, 215, 6205, 3500. इन सब नंबर में वंस प्लेस में 5, 5, 5 and 0 सब नंबर है. So it's all the 4 numbers are divisible by 5. These are the key factors of 5 table. Next 2. So in 2 I have already explained that in any number you can take in ones place the number is even number. कोई भी नंबर ले लो, ones place में even नंबर है, सो वो नंबर 2 के टेबल में पॉसिबल है. सभी जो यहाँ पे डार्क से लिखा है वो आपको नोटबुक में लिखना है. A number is divisible by 2 if it has any of the digit 0, 2, 4, 6 or 8 in its own place. It's divisible by 2. Ones place में कोई भी even number हो, 0, 2, 4, 6 और 8, ये सब कुछ even number है. इन सब को इन नंबर में से कोई भी नंबर वंस प्लेस में है, सो वो नंबर 2 के टेबल में पॉसिबल होगा. सो यू कैन राइट और नंबर से लेके वंस प्लेस तक आपको नोटबुक में कंपलसरी लिखना है. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 3. सो 3 के टेबल में कोई नंबर आपको चेकिंग करना है, ये नंबर 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका की फैक्टर. इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. सो ये की फैक्टर्स जानने के लिए जितने भी नंबर दिया है उन सब नंबर को ऐड करके 3 से डिवाइड करना है. अभी यहाँ पे 21 दिया है, सो 2 + 1 3 ऐड करने के बाद उसको 3 के टेबल से डिवाइड करना है. 2 + 7 इट मीन्स 9. 9 ऐड करने के बाद में देखना है कि वो नंबर 3 में पॉसिबल है या नहीं. अगर 3 में पॉसिबल है, सो वो नंबर इज पॉसिबल एंड डिविजिबल बाय 3. सो नेक्स्ट 290. 2 + 1 + 9 तीनों को पहले ऐड करना है, उसके बाद वो ऐड करके जो नंबर आ रहा है वो नंबर को 3 से डिवाइड करना है. अगर 3 से डिवाइड करने के बाद आपको 3 के टेबल में 0 आ रहा है रिमाइंडर में, सो ये नंबर 3 के टेबल में पॉसिबल है. सो अगेन one more example. 25 means 2 + 5. आंसर इज 7. 7 3 के टेबल में पॉसिबल नहीं है, सो दे आर नॉट डिविजिबल बाय 3. नेक्स्ट divisibility by 6. So these are the some key factors of the numbers which is very 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 important. से so, सब जो की फैक्टर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लाइफ लॉन्ग तक यूज होगा.
If a number is divisible by 2 and 3 both, then it is divisible by 6 also. कोई भी नंबर 2 एंड 3 के टेबल में पॉसिबल है, डिविजिबल है, वो नंबर 6 के टेबल में भी पॉसिबल एंड डिविजिबल होगा. So these are the lines you can write down in your notebook. So we will see one examples of divisibility of 6. Number 18. 18 is possible in 2 and 3 table, both the table. So it's also possible in the 6 table also. But 27. So 27 is only possible in 3 table because in one's place the number is even. So that the 27 is not divisible by 6. Next, divisibility by 4. A number with 3 or more digits is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits, ones and tens, is divisible by 4. First you can write down the lines, after that I will explain. So अगर आपको देखना है ये जो नंबर फॉर एग्जांपल 212, ये जो 212 है ये नंबर 4 के टेबल में पॉसिबल ये या नहीं. So we can write the factors of 212. You can first see that the number is divided by the 4 or not. So पहले ये देखेंगे कि ये नंबर 4 के टेबल में डिवाइड होगा या नहीं. So इतना थिंक करने की जरूरत नहीं है. So you can not divide the number also. With the help of the key factors, you can find out the number is divided by 4 or not. So any number, कोई भी नंबर होगा तो आपको वो नंबर में वंस एंड टेंस प्लेस टू नंबर्स को देखना है. वंस एंड टेंस प्लेस में जो नंबर है वो नंबर 4 के टेबल में डिवाइड होगा. सो द होल नंबर इज डिवाइडेड बाय द 4. सो ये वंस एंड टेंस प्लेस इज 12. अगर ये 12 नंबर 4 के टेबल में डिवाइडेड होगा सो 212 भी कंपल्सरी 4 के टेबल में डिवाइडेड पॉसिबल है. सो 12 4 के टेबल में पॉसिबल है. सो 212 भी 4 टेबल में डिवाइड होगा. So next 4 digit 1936. जितने भी प्लेस डिजिट 5 डिजिट हो या 6 डिजिट हो, कोई भी डिजिट का हो, सो लास्ट वंस एंड टेंस प्लेस में जो नंबर है वो नंबर ही हमको देखना है. सो इसमें 36 है. यस 36 इज डिवाइडेड बाय द 4. देन 1936 इज ऑल्सो divided by the 4. So 1936 भी 4 के टेबल में डिवाइडेड होगा. Next is the key factor of 8. Number with 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8. जिस तरह 4 के टेबल divisible by 4 में लास्ट 2 डिजिट लिया हमने, divisible by 8 में लास्ट 3 डिजिट को देखना है. सो लास्ट को जितने भी डिजिट प्लेस के नंबर हो तो उसमें लास्ट 3 डिजिट को देखना है. वो लास्ट 3 डिजिट 8 टेबल में आ रहा है तो ऑल नंबर भी 8 टेबल में आएगा. वो पूरा नंबर भी 8 टेबल में पॉसिबल होगा.
So it is the key factor of 8. So you can write only what I read. जो मैं read कर रही हूँ वही आपको लिखना है. Next, divisibility by 9. If the sum of the digits of a number is divisible by 9, then the number itself is divisible by 9. जो 3 का की फैक्टर है वही 9 का भी है. जितने भी नंबर्स थे उन सबको प्लस करके 9 से डिवाइड करना है. सो ये फॉर एग्जांपल 4608, इन सबको प्लस करेंगे तो आपको आंसर आएगा 18. सो 18 9 के टेबल में आ रहा है. सो 4608 भी 9 के टेबल में पॉसिबल होगा. So you can write the sentence and one examples of all the key factors. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 11. सो 11 में थोड़ा सा डिफरेंस होगा. जो अभी तक हम की फैक्टर्स लेके आए थे 2 3 4 5 8 9